Good evening. My name is Akshay Mohan Jha and I'm your English teacher for class 8. This is our second session for class 8. We were reading a chapter from supplementary reader that was how the camel got his hump. Now students, if you remember, we started with a small story wherein we learned that this world had just started and there were animals working for humans. There were three animals in total. First was a dog, second an ox, and third an horse. So in the beginning we learned that the horse came to a camel and asked to work for humans. The camel did not say anything, but it just said hump. The second, then there came the dog. He asked the same question. He made the same request to the camel, and the camel said hump. The third one was the ox, which came and asked the camel to plough the field along with him, and the camel again said hump. Now, the three of them turned back and went to the master, and the master was quite unhappy with the way the camel did its routine. So he said, since the camel did not work, so they will have to make up for his work, and they will have to work twice as much as they did. So, learning this, trio went to the desert jinn and informed him that there was a camel in the middle of the desert which did not work. Now, listening to this, the jinn said, the jinn actually heard their prayer or request. The animal said that was it right for anyone to be idle? Means any animal or any being, if it doesn't work, was it good? Now the jinn was not happy to learn this. He said certainly not, and then he said that he would take care of the camel and ensure that he starts working. Now we are going to study the second part of the story, and here I'll be doing the same thing. I'll be studying the chapter, and thereafter what I'll do is I will also explain it in Hindi. So be along. Now the jinn remonstrated with the camel who said hump. Means remonstrated, the meaning of this is given in your text. The jinn protested. The jinn protested with the camel who said hump. The camel beautiful back suddenly grew a lump, and hearing this, the camel back got a hump, which was the camel's hump. So you see a swelling on the back of the camel. आप जो देखते हैं उसके ऊंट के पीठ पे जो कुबड़ा होता है उसको हम कहते हैं. Now जो इसमें पहले लाइन में द जिन डेमोन्स्ट्रेटेड विद द कैमल हु सेड हम, तो यहाँ पे जिन जो है उसने कैमल से कंप्लेन किया और फिर कैमल ने हम कहा. द कैमल, और उसके बाद द कैमल्स ब्यूटीफुल बैक सडनली ग्रू अ लंप, और उसके बाद कैमल के पीठ पे एक बड़ा सा मांस का गुत्था हो गया, विच वॉज द कैमल्स हम्प. वो कैमल का हम बन बैठा. The jinn assured the camel his hump would always be a help, not a hindrance. तो जिन ने कैमल को कहा कि तुम चिंता मत करो, ये जो तुम्हारे पीठ पे कुबड़ निकला है वो तुम्हारी मदद करेगा और कभी तुम्हें परेशान नहीं करेगा. The jinn rolled himself up in the dust cloak and took a walk across the desert. और जिन जो है फिर धूल भरी डस्ट क्लोक, डस्ट मीन्स धूल, क्लोक मीन्स लबादा, खासकर जो पादरी पहनते हैं या जो प्रीस्ट पहनते हैं, या ये कहें प्रीस्ट जो बड़ा सा लंबा सा एक लबादा पहनते हैं सफ़ेद कलर का, उसको क्लोक कहते हैं. और इसको बोलचाल की भाषा में हम लोग ड्रेस भी कह सकते हैं. सो नाउ द जिन ड्रेस्ड इन द डस्ट क्लोथ एंड टुक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट, और उसने पूरे डेजर्ट में चक्कर लगाया. एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन अ पूल ऑफ वाटर. तो उसने देखा कि ऊँट जो है पानी के पूल में अपने
को देख रहा था. माई फ्रेंड सेड द जिन. तो उसने उससे उसको संबोधित किया और कहा, मेरे दोस्त, व्हाट्स दिस आई हियर ऑफ यू डूइंग नो वर्क. कहता है, ये मैं क्या सुन रहा हूँ तुम्हारे बारे में, तुम कोई काम नहीं करते हो. और ये कह के जिन जो है बैठ जाता है वहीं पे. द जिन सैट डाउन विथ हिज चिन इन हिज हैंड. और वो अपनी ठुड्डी को, अपनी दाढ़ी को अपने हाथ से पकड़ रखा. वाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर. जबकि ऊँट जो है वो पानी में अपने आप को देख रहा था. यू हैव गिवन 3 एक्स्ट्रा वर्क. यू वर गिवन 3 एक्स्ट्रा वर्क. सॉरी, यहाँ you have given 3 extra work ever since Monday morning. ये होगा, हाँ. The jinn says, you were given 3 extra work since Monday morning, all on account of your idleness, said the jinn, and he went on thinking with his chin in his hand. तो इस लाइन का मतलब ये है कि जिन कहता है कि तुम्हें 3 बार काम दिया गया. सोमवार के सुबह के दिन से तुम्हें 3 काम दिया गया. ऑल ऑफ योर आइडलनेस, चूँकि तुम बेकार थे, तुम काम नहीं कर रहे थे. और जिन इतना बोल के और सोचने लगा. थिंकिंग विथ हिज चिन इन हिज हैंड. और वो थोड़ी देर विचार करने लगा. हम सेड द कैमल. और कैमल जो है फिर हम कहता है. आई शुडंट से दैट अगेन इफ़ आई वर यू, सेड द जिन. तो जिन उसको समझाता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं शायद ये नहीं करता. यू माइट से इट वंस टू ऑफन, आई वॉन्ट यू टू वर्क. कहता है, तुम ना कह सकते हो लेकिन एक आध बार, और तुम्हें काम करना चाहिए. तुम्हें ये भी कहना चाहिए कि आई वॉन्ट टू वर्क, कि तुम्हें काम करना है. एंड द कैमल सेड हम अगेन. उसके बाद कैमल फिर हम बोला. बट नो सूनर हैड ही सेड इट देन ही सॉ हिज बैक. जैसे ही उसने ना कहा, उसका पीठ जो है वो सूज गया. दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ पफिंग अप इनटू अ ग्रेट बिग हम्प. और उसके बाद उसको गर्व से, अपने घमंड से, वो जैसे सांस लेता है, सांस लेने को कहते हैं पफ इन या पफ अप, सांस लेते से पफिंग अप इनटू अ ग्रेट बिग हम्प. उसके पीठ पे एक बड़ा सा कुबड़ा हो गया. डू यू सी दैट, सेड द जिन. तो जिन कहता है, क्या तुम उसको देख रहे हो? दैट्स योर वेरी ओन हम्प दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग. तो जिन कहता है कि तुम जो हम करते रहे, वही हम तुम्हारे पीठ पे निकल आया. और ये निकल के इसलिए आया है क्योंकि तुम काम नहीं करते थे. टुडे इज़ थर्सडे. आज का दिन बृहस्पतिवार है. एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे. और तुमने कोई काम नहीं किया है सोमवार के दिन से. व्हेन द वर्क बिगैन, नाउ यू आर गोइंग टू वर्क. अब जब से काम शुरू होगा, तुम अब काम करोगे. हाउ कैन आई, सेड द कैमल. कैमल कहता है कि मैं कैसे काम कर सकता हूँ. विद दिस हम्प ऑन माई बैक. ये जो कुबर है मेरे पीठ पे, इसको लेके मैं कैसे काम कर सकता हूँ. तो दैट हैज़ अ पर्पस, सेड द जिन. तो जिन कहता है उसका एक महत्व है. यहाँ पर्पस का मतलब महत्व है, उसका एक उपयोग है. ऑल बिकॉज यू मिस दोज 3 days. इसलिए कि तुमने 3 दिनों से कोई काम नहीं किया है. विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग. तो अब ये जो हम्प है वो तुम्हारी मदद करेगा, और आगे आने वाले 3 दिन बिना खाए तुम काम कर सकते हो. बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प. चूँकि उस हम्प से तुम जी सकोगे, वो तुमको खाना प्रोवाइड करेगा. डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनी थिंग फॉर यू. और इसके बाद तुम कभी मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया है. कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द ट्री एंड बिहेव. तो वो कहता है, जिन कहता है कि तुम इस रेगिस्तान से बाहर निकलो और उन तीनों के पास जाओ और जाके अच्छे भले बनो. एंड बिहेव. एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द 3. उसके बाद जो कैमल है वो तीनों जानवरों के पास गया. एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर्स अ हम्प. और उस दिन से लेके आज तक जो ऊँट है उसके ऊपर ये हम्प है. वी कॉल इट हम्प नाउ नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग्स. हम इसको हम्प कहते हैं क्योंकि अब हम इसको दुख नहीं देना चाहते हैं. बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप विद द 3 days दैट ही मिस्ड एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड. लेकिन आज भी वो जितना काम करता है
वो सारा काम देखा जाए तो भी जो शुरू के 3 दिन उसने काम नहीं किया, उसका अभी तक उसने भरपाई नहीं कर पाया। एंड ही हैज़ नेवर येट लर्नड हाउ टू बिहेव, और आज के दिन तक वो सीख नहीं पाया है कि कैसे किसी के साथ व्यवहार किया जाता है। दिस is a story written by Rudyard Kipling. He is a famous writer and a storyteller. So I hope you have understood this story, simply explained. Now, my request to all you students is, now you need to work on your comprehension check number 2. The camel was looking at his own reflection, means this is the comprehension check number 2. Please do it. Then you can do the exercise, just the two things, and that is it. So that's your homework. I would also request you to work on your vocabulary, and tomorrow I'll be supplying your question and answer for the entire chapter. Thank you. Have a wonderful evening.